अभी अभी ज्वाइन किया हो क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो गया है कुड से ही, ठीक है। अगर आगे चली गई होती लाइक कुड बी, कुड हैव बीन, तो थोड़ा लेट हो जाता, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, यू जस्ट हैव टू पुट कुड। एट फर्स्ट यू हैव टू टेक सब्जेक्ट, देन यू हैव टू पुट कुड। सो दिस वन इज वेरी सिंपल। नाउ श्वेता, इट्स योर टर्न, डू इट। A boy was thinking if he could change his life, he decided that he could learn English to increase his confidence. He could learn English. Could. He could learn English मतलब Okay, could learn. बट यहाँ क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है। मतलब कुड का जो यूज यहाँ पर हो रहा है ना, वो कॉन्फिडेंस के लिए यूज हो रहा है। ओके, सो he could increase his confidence by learning English. yes. At first he kept making mistakes. But he kept practicing every day. He kept doing practice because with practice we don't put ing. Okay. Kept doing practice every day. He kept doing practicing every day. Practice every day. Slowly he started talking with people without any fear. Okay. At last he realized that if he tried earlier, If he had tried earlier, then he could have achieved success soon. more quickly or soon. You can say Soon. You can say quickly. Okay. Then he could have achieved success soon. Okay. So this is could that we have already completed. This is your revision going on. Alright. And there is nothing very difficult that you are using could. Just wherever you are getting any possibility, you have to refer your possibility about any activity that you are showing some possibility about the action. Then you have to use could. And you can also use can, may, might. Like you can say, one boy was thinking that he can change his life, or he may change his life, and he might change his life. He decided that by learning English, he could increase his confidence. He can increase his confidence. He may increase his confidence. He might increase his confidence. The four you may use. So this could has been done. Now we are moving towards the another, that is could be. Okay, could be. Now what is the difference? Could and could be. कुड में देखो हर जगह आपको मिल रहा है सकता है, ये जो येलो कलर में है। ओके, सकता है, ठीक है। लास्ट वाला थोड़ा डिफरेंट है। ओके, ये छोड़ दो अभी के लिए। बट कुड बी में देखो हो सकता है ना। एवरीवेयर यू विल गेट हो सकता है। एक दिन रिया को लगा कि एक बड़ा चांस हो सकता है, टर्निंग पॉइंट हो सकता है, सही हो सकता है, चॉइस बेस्ट चॉइस हो सकता है, शुरुआत हो सकता है। मीन्स एवरीवेयर दिस इज कॉमन दैट यू विल गेट हो। ओके, एंड इफ यू हैव रिमेंबर देन BEB मीन्स, एनीबडी कैन यू टेल मी BEB मीन्स? किसी चीज का होना। यस, एग्जैक्टली, BEB मीन्स होना। तो इस तरह से यू में रिलेट, है ना, कि अगर सिर्फ कुड का यूज करना है, मीन्स कुछ काम है जो किसी काम का
जैसे कि देखो वर्ब के साथ डायरेक्ट आ रहा है, चेंज कर सकता है, बढ़ा सकता है, लेकिन कुड बी का यूज आप वहां करोगे जब सेंटेंस में आपको वर्ब के साथ साथ ये भी मिले कि कोई काम हो सकता है, होना, उसके साथ होना आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज योर कुड बी, यू हैव टू यूज कुड बी इन दिस sentences and Azra, you do it. This is also we have completed, just revision is going on. One day, Ria felt that it could be a great chance to her. Ria thinks that it was a turning point. It could be a turning point of her decision. Okay, उसने सोचा. So how can you say she think? Yes. She thinks कैसे यूज करोगे? उसने सोचा. He thought. Sorry. Thought. Yes. She thought. She Why thought that it What was. is the reason? What is the reason she thought? उसने सोचा है तो नहीं ना, इसलिए. Which tense is it? You have to tell the tense. Which tense is it? Future. Future होता तो ऐसा. No. The present. वो सोचेगी. Present. No. Present. Past indefinite. Yes, past indefinite. No. One thing is common everywhere. You should observe. You all should observe. One thing is common everywhere that you are getting every time past indefinite tense. Okay? Like this second. उसने decide किया. This is also your past indefinite. उसने decide किया. ठीक है. अगर प्रेजेंट होता तो वो डिसाइड करती है, अगर फ्यूचर होता तो वो डिसाइड करेगी, बट उसने डिसाइड किया. दिस इज योर पास्ट. एंड एंड में ये देखो, आखिर में उसने रियलाइज किया. दिस इज ऑल्सो योर पास्ट इंडेफिनिट. सो दीज काइंड ऑफ इन दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेज एवरीवेयर यू आर गेटिंग पास्ट इंडेफिनिट. रिया को लगा. दिस इज ऑल्सो पास्ट इंडेफिनिट. दैट्स वाई वी से रिया फेल्ट. Because the rule of past indefinite tense is subject plus verb का second form plus Object. Yes. So this is the reason. In this way you have to say we are using she felt, she thought, because this is past indefinite tense. उसने सोचा. Okay, continue. उसने सोचा. She thought that it could be a turning point of her life. Yes, थोड़ा डर था. She scared that. पर ये रिस्क लेना सही हो सकता है. But taking this risk could be right. Okay. Next. जब उसने स्टेप लिया. When she took her step. When she महसूस हुआ. When she took her step, उसे महसूस हुआ कि she felt that it was a best choice of her. It could be. जब सेंटेंस में ऑलरेडी आप लोगों को दिख रहा है सकता है, then why you are saying was. हो सकता है. Sorry. Yes, it could be a best choice. Very childhood, very early choice. Can और could we use for सकता है या सकना, उसके लिए यूज करते हैं ना. Last one. It could be a best choice of her. आखिर में उसने उससे समझा. At the end, he realized that ये सब उसके लिए एक नई शुरुआत होगी. It could be a new beginning of her life. These all could be a new beginning. These all could be a new beginning of her. For her. Okay. जब उसने स्टेप लिया, which tense is it? जब उसने स्टेप लिया.
पास्ट इन एग्जैक्टली ओके जब उसने स्टेप लिया ये पास्ट इंडेफिनिट है नाउ कन्वर्ट दिस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट हिंदी में ये क्या लिखा होता है जिससे समझ में आता है कि आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है जब उसने ये स्टेप लिया है या प्रेजेंट परफेक्ट हो गया वो लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में करो जब उसने ये स्टेप स्टेप ले रहा है ले ले रही रहा है है प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है ती है ना हम्म जब ये स्टेप लेती है एग्जैक्टली यस नाउ फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर इंडेफिनिट उसने उस वक्त वो स्टेप लिया उसने पे अटकना नहीं उसने को चेंज कर दो ना उसने की जगह वो कर दो वो और उसने तो सेम ही होता है ना ओके तो जब वो स्टेप ओके लेगी या जब वो स्टेप लेगा लेगी क्लियर हो गया है ना हाँ ये सब क्लियर होना चाहिए हाँ क्योंकि अभी भी देर आर सो मेनी कि यू आर गेटिंग कंफ्यूज दैट विच टेंस इज इट अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है बहुत किसी को ठीक है तो ये क्लियर होना चाहिए नो नो वरीज आई विल कीप आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस नाउ उसे महसूस हुआ वसीम विच टेंस इज इट उसे महसूस हुआ he is not in the meeting ओके श्वेता उसे महसूस हुआ विच टेंस इज इट Past indefinite. okay convert it into present indefinite उससे महसूस हो सकता है उसे को चेंज कर सकते हो वो महसूस करती है ऐसे बोल सकते हो वो उसे ऐसा नहीं कि उसे चेंज नहीं वो कर महसूस कर सब्जेक्ट को चेंज कर दो है ना हम लोग ऐसे कह सकते हैं ना अगर नाज को अगर रेफर करना है तो हम कह सकते हैं ना कि वो अगर नाज सामने बैठी है तो इस तरह से कह सकते हैं कि वो जाएगी या वो ऐसा महसूस कर महसूस कर सकती हूँ ऐसे भी बोल सकते हो कि उसे ऐसा महसूस होता है ना सो यू कैन चेंज तो फ्लेक्सिबल है वो उसे महसूस हुआ ओके फ्यूचर में कन्वर्ट इनटू फ्यूचर उससे महसूस होगा yes very nice okay this is done now last one oh Azra you done it Naz now it's your turn ये वाला the same ओके and try to be quick